Hello students, welcome you all. Students, today we are starting with our 10th chapter of our science subject. The name of the chapter is gravitation. Yes students, it's a very interesting chapter. We will study regarding various features regarding gravitation. What is gravitation? Then its various properties we will study. Okay students, so let's start with this chapter. First of all, what do you mean by gravitation? Gravitation is the force of attraction between two objects in the universe. Yes, between any two objects in the universe. पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय द अर्थ. Okay, we all know that if a body is dropped from a certain height, it falls downwards due to the Earth's gravity. We have studied in our lower classes that when any object is dropped from a height, it always falls downwards towards the Earth. Why? Because the Earth attracts it towards itself due to its gravitational force. Similarly, even if we throw a body upwards, it will reach to a certain height and then again it will fall downwards towards the earth because of the gravity, earth's gravity. So our earth possesses gravitational force due to which it attracts various objects towards itself. Similarly, gravitation may be the attraction between objects in the outer space, in the space also. For example, attraction between the earth and the moon. The moon is revolving around the earth due to the gravitational force of the earth. Similarly, all the planets are revolving around the earth, around the sun. All the planets are revolving around the sun due to the gravitational force of the sun. So gravitational force is a force of attraction between any two objects in the universe. But this force is very feeble force. Feeble means very weak force. Okay, so let us continue now. What is centripetal force? See students, when a body moves in a circular path, suppose you are having a thread and you have tied a stone with the thread, and now you are revolving that stone with the help of that thread in a circular path. So when a body moves in a circular path, it changes its direction at every point. At every point, because it is a circular path. तो circular path में क्या होता है, हर point पे direction change होता है. The force which keeps the body in the circular path acts towards the center of the circle, and this force is called centripetal force. Now what is centripetal force? The force which keeps the body in the circular path. बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक फोर्स एक्ट करता है, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी, towards the circle, center of the circle. Understood? And this force is called centripetal force. जब हम हमारे हाथ में एक धागा लेके उससे हम लोग एक स्टोन को ऐसे रिवॉल्व करते हैं ज़ोर ज़ोर से, यू कैन सी द फिगर 10.1 इन आवर टेक्स्ट बुक. ओके, तो उस समय उस धागे के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, सो दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स स्टूडेंट्स. तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. And what is centripetal force? When a body moves in a circular path, the force which keeps the body in that circular path, that force acts towards the center of the circle, and that force is called centripetal force. Now students, let us start with our most important topic of this chapter, that is universal law of gravitation. Students, we have to discuss the universal law of gravitation and then derive its mathematical form. So what is universal law of gravitation? Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये जो स्टेटमेंट है ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं. सी हियर यू कैन सी देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी. एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है. ऑब्जेक्ट ए का मास हम लोग कैपिटल एम मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट बी का मास स्मॉल एम मान लेते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डी. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स? डी. सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, वी हैव टेकन टू ऑब्जेक्ट्स having masses capital M and small m respectively, and the distance between the objects is d. Now according to universal law of gravitation,
according to universal law of gravitation, what you will do, this the force between the two objects, ओके ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये तो हम जानते ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इट इज़ द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो ये जो दोनों फोर्स ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं, वो किसे अट्रैक्ट करते हैं, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। व्हाट डज दैट मीन, ये दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को मल्टीप्लाई करो ना, तो उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हाउ विल यू राइट दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वंस अगेन रीड द स्टेटमेंट, फिर इसका हम डेरिवेशन करेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनके मासेस के प्रोडक्ट के साथ प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब क्या है, दैट आई विल शो यू विद द डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम यू हैव टू डू। नाउ लेट अस सी द डेरिवेशन। हमने स्टेटमेंट देख लिया, फिगर देख लिया, तो डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शनल का सिंबल कैसा होता है, देखो मैंने साइड में लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल का सिंबल ऐसा होता है अल्फा जैसे, दिस सिंबल इज फॉर प्रोपोर्शनल। अब ये जो मैंने लिखा है ना सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल, वो आपको डेरिवेशन नहीं लिखना है, दैट इज फॉर योर नॉलेज ओनली। Okay, now let us start the derivation that gravitational force is directly proportional to the product of their masses. So F is proportional to m into m, दोनों के masses को proportional है, directly proportional मतलब सामने सामने आ जाएगा। F is proportional to m into m, that is the equation number 1. Now आगे और स्टेटमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, that force is inversely proportional to the square of the distance between them. अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी डी स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/d स्क्वायर। एफ वेरीज, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, इनवर्सली मतलब 1 हो जाएगा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स वंस अगेन, हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो स्टेटमेंट था, उसमें क्या लिखा था, दैट force is directly proportional to the product of their masses. So F is proportional to m into m, that is the equation 1, and inversely proportional to the square of the distance between them, यानी F proportional to 1/d square, inversely में क्या होता है 1 हो जाता है, तो 1/d square, that is the equation number 2. Now combining both the equations, combining equation 1 and equation 2, जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दोगे तो F proportional to क्या आएगा, m इंटू एम, न्यूमरेटर में m इंटू एम आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, d स्क्वायर, क्योंकि d स्क्वायर वैसे भी डिनोमिनेटर में था। सो कंबाइनिंग बोथ दिस इक्वेशंस, f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन d स्क्वायर। नाउ जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ओके, एट दैट टाइम यू हैव टू प्लेस अ कांस्टेंट ओवर देयर। RHS में राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे भी देखो, जब मैंने प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू साइन लगाया तो एक कांस्टेंट g लगाया, देयरफॉर f इक्वल्स टू g, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हट के इक्वल टू आ गया, f इक्वल टू g m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहाँ तक फिर से आ जाते हैं वापस स्टूडेंट्स। मैंने पहले क्या बताया, f प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम, दैट इज फर्स्ट नंबर, then f proportional to 1/d square, that is your second equation. Then combining both the equations you will get f proportional to m into m upon d square, और जब इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे, then you have to place a constant g, तो f इक्वल टू g m into m upon d square, where g is a constant of proportionality and it is also called universal gravitational constant. ये जो g है ना, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या होती है, सेम होती है g की वैल्यू। ओके, सो इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन में से, फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर मुझे g का फॉर्मूला बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर में d स्क्वायर है ना, उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने का f के पास, तो हो जाएगा f इंटू डी स्क्वायर, और ये जो m इंटू एम है उसको लेके आ जाने का नीचे। ओके, तो g का फॉर्मूला बन जाएगा f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m इंटू एम। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर g, कैपिटल g इक्वल्स टू व्हाट, f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m इंटू एम। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ g वाज कैलकुलेटेड बाय द साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश। g की वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी, बाय द साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ g, इट इज
673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Once again, what is the value of G, students? It is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, and see, you have seen the unit also. This is the SI unit of G, Newton meter square per kg square. So by this, students, we have finished the universal law of gravitation. उसका स्टेटमेंट लर्न करना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है और ये डेरिवेशन आपको देना है. ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, now students, let us discuss the importance of the universal law of gravitation. So we all know that the universal law of gravitation successfully explained several phenomena which were believed to be unconnected. Okay, which are those phenomena? First, the force that binds us to the earth. We all are on the earth. हम earth पे क्यों खड़े हैं? Because the earth attracts us towards itself with the gravitational force. ओके, इसके लिए हम अर्थ पे खड़े हैं. अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का नहीं होता ना, तो हम यहाँ से सीधा उड़ के स्पेस में चले जाते. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट इज बाइंडिंग अस टुवर्ड्स द अर्थ. देन द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड मून अराउंड द अर्थ. वी ऑल नो दैट मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. Then similarly, the motion of planets around the sun. All the planets are revolving around the sun due to what? Due to the gravitational force of the sun. And similarly, the tides due to the moon and the sun. Students, we all know that during the full moon day, है ना, we can see that there are high tides in the sea. अब नदी दरिया किनारे जाओगे ना, तो बड़े बड़े हाई टाइड्स आते हैं फुल मून डे के दिन. एक्चुअली होता क्या है, ड्यूरिंग दोज डेज देर इज हाई ग्रेविटेशनल फोर्स. मून और सन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, ड्यू टू विच द वाटर राइजेस टू अ हाइट. द वाटर राइजेस टू द हाइट, बट इट कैनॉट गो टूवर्ड्स द मून और सन, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको वापस से नीचे खींचती है. एंड सो दे फॉल अगेन ऑन द सी, इन द सी. तो दिस हाई टाइड्स आर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन. So these are the importance of the universal law of gravitation. Okay students. Now students, let us start our another topic, that is free fall. What do you mean by free fall? Whenever objects fall towards the earth under the effect of gravitational force, we say that objects are in free fall. Suppose I am releasing an object from a certain height. It is falling towards the earth because of the gravitational force of the earth. So that object, the fall of the object is said to be free fall. जब कोई ऑब्जेक्ट को आप एक हाइट से रिलीज करते हो, तो वो सीधा फ्रीली फॉल होके अर्थ पे गिरता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ओके, सो वंस अगेन, व्हाट यू मीन बाय फ्री फॉल? व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल. Now, whenever objects fall on the earth, जब भी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं एक हाइट से, इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस एंड दैट चेंज इन वेलोसिटी क्रिएट्स व्हाट? एक्सेलरेशन. सो एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स आर फॉल ऑन द अर्थ, एंड दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, इसके लिए वो एक्सेलरेशन से होके नीचे गिर रहा है. सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डिनोटेड बाय सिंबल G. यस स्टूडेंट्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आता है वो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डिनोटेड बाय सिंबल G. एंड इट्स SI यूनिट तो वो एक्सेलरेशन का ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now students, we will derive the relation, we will obtain the relation between this small g and capital G. अभी हमने small g पढ़ा. small g क्या है? It is acceleration due to gravity, यानी gravitational acceleration. और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था capital G, that is universal gravitational constant. तो let us derive the relation between both this g, small g and capital G. Okay? So what we are doing now, we are obtaining the relation between small g and capital G. So let us start now from Newton's second law of motion. Students, in chapter 9 we have studied Newton's second law of motion. वहाँ पे हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू a. ओके, बट फॉर द फ्री फॉल, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ओके, अपना a की जगह हम क्या लगा देंगे? G, विच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन.
यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो आपका फॉर्मूला हो गया F इक्वल्स टू m इंटू जी. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. स्टूडेंट्स, व्हाट वी डिड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए. ओके, ए की जगह हमने क्या लगा दिया? जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, F इक्वल्स टू m इंटू जी. नाउ फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? F इक्वल्स टू जी m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स. F इक्वल्स टू जी m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ लुक केयरफुली एट बोथ दिस इक्वेशंस. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है. दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स F है. तो जिनका लेफ्ट हैंड साइड सेम होता है तो उनका दोनों का RHS भी क्या होगा? सेम होगा, राइट हैंड साइड. आर यू गेटिंग? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा. सो फ्रॉम बोथ दिस इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट यू गेट? हमने दोनों के RHS को इक्वल में लगा दिया. m इंटू जी इक्वल टू जी m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे m और m कट गया. स्मॉल m क्या है? मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो स्मॉल m कट गया दोनों बाजू में से. ओके, तो देयरफॉर व्हाट यू गॉट द फॉर्मूला ऑफ दिस स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपॉन डी स्क्वायर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G. स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपॉन डी स्क्वायर. ओके, नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो उस समय हम लोग d की जगह क्या लगाएंगे? r लगाएंगे. व्हाट इज r? रेडियस ऑफ अर्थ. अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर सरफेस पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? अर्थ के रेडियस तक से होगा. तो इट इज r इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, तो व्हाट यू विल डू? यू विल सिंपली अप्लाई r इन प्लेस ऑफ d. तो व्हाट यू विल गेट? देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन 3 यू विल गेट स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? r स्क्वायर. d की जगह r लगा दिया. एंड हियर m इज द मास ऑफ द अर्थ. So this is the relation between what? Small g and capital G. Very important topic बेटा, एग्जाम में आता भी है. What do you mean by free fall? और free fall का डेरिवेशन ये पूरा. ओके, दोनों साथ में करना है. इसके साथ में अभी हम लोग एक और टॉपिक करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल g. हमने तो जान लिया कि कैपिटल G का वैल्यू कितना होता है? इट इज़ कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स. 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये कैपिटल G का वैल्यू था. ओके, एंड दैट वैल्यू वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स. बट वी विल डिराइव द वैल्यू ऑफ g, स्मॉल g, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल g you have to put the values of capital G, M and R. Now what is capital G? It is universal gravitational constant और उसका वैल्यू क्या है? 6.673. तो उसको राउंड अप करके 6.7 लिया इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M? कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ. 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ. 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. ओके, तो ये सारी वैल्यूज हम किस में डाल देंगे? स्मॉल g का फॉर्मूला जो है स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. तो कैपिटल G का वैल्यू लगाया इंटू m यानी मास ऑफ द अर्थ लगाया और अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर कर दिया यानी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कर दिया. आफ्टर कैलकुलेटिंग द होल वैल्यू पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको लास्ट में क्या मिलेगा? इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So the value of small g, that is acceleration due to gravity of the earth, is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. है ना, ये g की वैल्यू जो स्मॉल g की वैल्यू है इट इज़ नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. हमारे सी लेवल पे ये वैल्यू है स्मॉल g की. ओके, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे ये स्मॉल g की वैल्यू चेंज हो जाएगी. सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल g दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. ओके, इसका वैल्यू 9.8 कहाँ पर है? अर्थ सरफेस पे. Okay, as soon as you go away from the earth, the value of small g will change. Okay, so that you have to remember. Okay, students. Now, students, we all know that the earth is not a perfect sphere. अर्थ का जो शेप है इट इज़ नॉट लाइक अ परफेक्ट स्फीयर. एक परफेक्ट फुटबॉल जैसा नहीं है. इट इज़ ओवल इन शेप. ओके, नाउ सिंस इट इज़ ओवल इन शेप
its radius of the earth increases from the poles to the equator. मतलब पोलर रीजन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अर्थ का रेडियस कम है और इक्वेटर में अर्थ का रेडियस ज़्यादा है. ओके, वंस अगेन स्टूडेंट्स, द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज ओवल इन शेप, सो द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर. ओके, पोलर रीजन में अर्थ का जो रेडियस है वो कम है और इक्वेटर में अर्थ का रेडियस ज़्यादा है. ओके, सो द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर. जहाँ पे अर्थ का रेडियस कम है वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है. ओके, एंड व्हेन द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स ग्रेटर एट द इक्वेटर, एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स लेसर. आर यू गेटिंग? सो पोलर रीजन में जी की वैल्यू कम है, जी की वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी, पोलर रीजन में जी की वैल्यू ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे अर्थ का रेडियस कम है और इक्वेटर में अर्थ का रेडियस ज़्यादा है तो जी की वैल्यू क्या है? कम है. ओके, सो दिस इज द रीजन. गिव रीजन भी आ सकता है. द वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर. तो व्हाट यू विल से, सिंस द रेडियस ऑफ द अर्थ इज लेस एट द पोल्स and it is greater at the equator, so the value of g will be greater at the poles than at the equator. Okay students, and main reason for this is that earth is not a perfect sphere, it is oval in shape. Okay students, so students, by this we end our today's session. Okay, today we discussed very important topics regarding gravitation, gravitational force का definition देखा, then we saw universal law of gravitation, उसका statement और derivation देखा, then we saw importance of the universal law of gravitation, then we discussed the meaning of free fall, what do you mean by free fall. Okay, and then we obtained the relation between small g and capital G. We even calculated the value of small g. Okay, so we have discussed so many important topics of this chapter. We will continue with the other topics in the next session. Till then, take care students. Thank you.